علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قضاء الہی سے حسین رضوی کی وفات پر تمام پاکستانی عوام سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. السلام علیکم. On the demise of religious Pakistani scholar Alim Khadim Hussein Rizvi, I want to extend to my condolences. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبلہ امیر المجاہدین اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے بارے میں جو اطلاعات چل رہی ہے سانس کی بحالی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس خبر کی کوئی صداقت نہیں ہے، لہذا تمام آپ جلد لاہور. میں آ گیا، تھوڑی دیر قبل اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. اللہ ابھی اطلاع ملی ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرا پیغام عالم کفر تک پہنچائیں. آج عالم کفر چاہے فرانس ہو یا دنیا کا کوئی اور ایسا ملک ہو جس میں گستاخ زندہ ہیں، وہ خوش ہیں کہ آج خادم رضوی چلا گیا. اب ناموس رسالت پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں کسی اور کی ضمانت نہیں دیتا. میرا نام محمد حسن رضا نقشبندی ہے. انشاءاللہ عز و جل جب تک میں زندہ ہوں اپنے استاذ گرامی کے مشن کو جاری رکھوں گا. بڑا کام ان سے اللہ رب العالمین نے لیا، اور اس کام کی عظمت یہ ہے کہ بندہ اگر صدیوں بھی عمر پائے تو شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکے جو امام غیرت امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا جناب خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین نے لیا. جس جرت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے. ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق. مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً یہ ایک بہت بڑے دکھ کی خبر ہے کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک انتقال کر گئے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے، لیکن بیماری کا لوگوں کو تبھی پتہ چلا جب ان کے وصال کی اور ان کے انتقال کی خبر سنی. انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے، اور آج وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام. اللہ ان کو برزخی زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے، اور اپنی خاص امان اللہ امت مسلمہ کا مقسوم فرمائے. ان کے پسماندگان، ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. اللہ سب کو صبر عطا کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی کا نور عطا فرمائے. ایک ایسی خبر ہے جس نے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے. جس بندے نے اس امت کو حضور کے ساتھ جوڑا اور جوڑنے کی بھی اخیر کر دی، آج وہ عظیم مجاہد رخصت ہو گیا ہے. الحاج شیخ الحدیث بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے.
अहबाब, अब तुम तलाश करोगे सदियों में ऐसा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा, देख लेना। दुकानदारी करने वाले तुम्हें बड़े नजर आएंगे, जो बेवकूफ़े वाले भी तुम्हें नजर आ जाएंगे। ऐसा दरवेश हमें ढूंढ के दिखाना। सुनियो, जिंदा बंदे की कदर कर लिया करो, मरने के बाद ही तुमने नारे लगाने होते हैं। कितनी लोगों ने मुखालिफत की, लेकिन उसने गुंबद खजरा को ही देखा सारी जिंदगी। नहीं जी, साढ़े नारे नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत। आज आलम कुफर कह रहा है जी, आज हमारी, मैं कहता हूं मीडिया आजाद है, तू किथों दा आजाद है? तू ते सारी जिंदगी कहता रहे खादिम हुसैन रिजवी दहशतगर्द, आज दहशतगर्द की तू खबरें चला रहे हैं। आज हर मीडिया खादिम हुसैन की बात कर रहा है। क्यों कर रहे हो? तुम क्या समझते हो कि तुम पट्टी नहीं चलाओगे तो गुलाम नहीं आएंगे? या इमाम अहमद बिन हंबल के नौकर हैं, सारी दुनिया की सर्वस बंद हो जाए, जे काफिर भी कल मीनारे पाकिस्तान आ जाएगा कलमा पढ़ के नबी दा गुलाम। ताजदारे कल जनाजा नहीं ने, कल ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ने जनाब आना। जने मंजर वेखड़ा में ना, कहते हैं जी आज दफना देना था, कल क्यों नहीं दफनाया? मैं क्या पुत्र तेन दसन वास्ते नहीं दफनाया कि जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का दहन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, चमन मैला नहीं होता, सुखन मैला। या रसूल अल्लाह लब्बैक, ऊपर इतने शहद चलाए गए। यही सिर्फ मुतालबा था हजरत उस बाबे का। उसने कहा फ्रांस के सफीर को बाहर निकाला जाए। और ये जिसने कलमा पढ़ा है, हर बंदे के ये जज्बात थे। और आपको पता है कि मैंने जब नमूस रिसालत के ऊपर जुमा पढ़ाया और मैंने कहा, मैं कहा इतनी भी गैरत नहीं है कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। हजरत हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं अपने नबी के लिए जिनका कलमा पड़ा है। हमें जनाब जज्बाती लोग कहा जाता है। देखो जी, ये जज्बात के अंदर आ जाते हैं, देखो जी इनके जज्बात बढ़ जाते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे बताना दोस्तान मोहतशम, आपके मुल्क का वजीर हुआ फवाद चौधरी, 2 दफा उसने सहाफियों को चटाका मारा, उसने समी इब्राहिम को भी चटाका मारा, उसने मुबशर लुकमान को भी चटाका मारा। उसको जब उन्होंने ऑन एयर लिया, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता नाम पर सहाफी है, क्यों चटाका मारा है, क्यों हमला किया है? उसने कहा वजह ये है मेरे खिलाफ बोलते हैं। और तेरे खिलाफ अगर कोई जुमला बोले तो तुम्हारे जज्बात ये है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खुदा की इज्जत की कसम, इस कायनात के लोगों को पता ही नहीं है कि नबी के गुलाम अपने आका से प्यार कितना करते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मुझे रात को बोझ के अंदर एक रिटायर्ड फौजी ने अपने घर के अंदर बयान के लिए बुलाया हुआ था। मैंने वहां पर भी ये बात का इजहार किया। मैं कहा खुदा की इज्जत की कसम, मेरे जैसे नौजवान नशा कर रहे हैं, मेरे जैसे जवान ज़नाकारियां कर रहे हैं, मेरे जैसे जवान लोगों को लूट रहे हैं। अगर ये हार पहनाए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं, मुस्तफ़ा की वजह से बुला रहे हैं। मैंने सबके सामने कहा, मैं कहा मुस्तफ़ा से हमें वालिदैन से बढ़ के प्यार है, औलाद से बढ़ के प्यार है, पाकिस्तान से बढ़ के प्यार है। वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इज्जत भी मिली है मुस्तफ़ा की वजह से। हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफ़ा के लिए है, हमारा सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। मैं सारी रात यकीन करो मैं रोता रहा, उस बाबे की तस्वीरें सुन उस देख के है, हजरत उसके जुमले याद आएंगे। सुबह तक मैं
जुम्मे की तैयारी कर रहा था, उसका एक जुमला बार बार लाना था, वो कहता ही मेरी एक नसीहत को बस याद रख लो है, वो कम अज कम हुजूर ना इतना प्यार करके जाओ ताकि हुजूर जब देखे तो कहे वो देखो हमारा गुलाम था। मैं आपको ये बता, जितने भी जनाजे हुए हैं, जितने जनाजे हुए हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, गाजी मुमताज शहन कादरी का जनाजा हुआ, गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा हुआ, बड़े बड़े अकाबिरीन आए, मौलाना शाह अहमद नूरानी का जनाजा हुआ है, बड़े बड़े जनाब अकाबिरीन पिछले दिनों फौत हुए हैं, आपने सबके जनाजे देखे हैं। लेकिन कल आप देखना लाहौर की धरती पे खादम हुसैन रिजवी का जनाजा, इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनको पता चल जाएगा कि दुनिया के ओहदे के ऊपर रह के दुनिया से जाना और होता है, नबी की इज्जत पे पहरा दे के दुनिया से जाना और होता है। जब नबी का गुलाम जाता है तो ये दुनिया वालों के जरे बताते हैं, इनका आना बताता है। कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, और मैं कुर्बान जाऊंगा बेबे। मैं उस बाबे से मैं एक दफा नहीं मिला, मैं 2-3 दफा मिला, मुझे अभी तक शमशीर बेनिया था, खादिम हुसैन था, शमशीर बेनिया था, खादिम हुसैन था। सुनियो सर से साया चला गया, सुनियो सर से साया चला गया। अरे अल्लाह इनाम था, खादिम हुसैन था, अल्लाह कहो वो शमशीर बेनिया था, अभी अभी इंतहाई गमनाक खबर मौसूल हुई है कि कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर सफ़ीर इश्क मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो गया। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्फाज और इस वक्त दिमाग साथ नहीं दे रहा है कि हम उनके हवाले से कोई उनकी खिदमत पर बात करें, क्योंकि उनका ये सानिया इर्तिहाल की जो खबर है इसने दिमागों को सोचों को माउफ करके रख दिया। लेकिन चूंकि कुदरत का फैसला है, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो ड्यूटी थी, उन्होंने आखिरी सांस तक उस ड्यूटी को पूरा किया। ये वो लोग हैं जो मुंतखब शुदा लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चुनीदा लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको बारगाह खुदाबंदी से और बारगाह मुस्तफ़ा करीम से कायनात को बेदार करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया था। और शायद ऐसे ही लोगों के बारे में किसी साहिब दिल ने कहा था कि वो लोग हमने एक ही शोखी में खो दिए, ढूंढा था आसमान जिन्हें खाक छान कर। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिल्लत इस्लामिया को बेदार किया है, कायनात आलम को बेदार किया है। और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो तसव्वुर इश्क मुस्तफ़ा जो उन्होंने पेश किया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर
कर दे। अल्लामा इकबाल के इस तसव्वुर इश्क मुस्तफ़ा को कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दुनिया के सामने पूरा करके दिखाया, और कायनात के अंदर बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो इस्लामिक दुनिया हो या गैर इस्लामिक दुनिया हो, आपने इश्क रसूल के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आपने मिल्लत इस्लामिया को बेदार किया, आपने नौजवानान को बेदार किया, आपने दुनिया में 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के ज़मीरों को बेदार करके उनके अंदर इश्क रसूल की रूह को फूंका है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमात को और आपने जो इस कायनात को नबी पाक और तहफ़्फ़ुज़ नामूस अंबिया के हवाले से जो दुनिया को बेदार किया है, तारीख इसे हमेशा याद रखेगी। सुबह क़यामत तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क रसूल को याद रखा जाएगा। सुबह क़यामत तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो मिल्लत इस्लामिया के अंदर बेदारी पैदा की है उसको याद किया जाएगा। आप इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर तो आप इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले और आपकी फिक्र को कबूल करने वाले जितने भी नौजवान हैं और जितने भी मुसलमानान बर्रे सगीर और पाको हिंद और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, उनमें से आपने हर एक को खादिम हुसैन रिजवी बनाकर इस दुनिया के अंदर छोड़ा है, हर एक को सफीर इश्क मुस्तफ़ा बनाया है, हर एक को ये पैगाम दिया है कि दुनिया में जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए है। इस गमनाक मौके के ऊपर मैं अपनी जानिब से, जमात अहले सुन्नत बरतानिया की जानिब से और उलमाए अहले सुन्नत बरतानिया की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कायदीन और तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो उनको फॉलोवर थे उनको बिलखसूस और पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनको कब्र में दीदार मुस्तफ़ा, हशर में शफात मुस्तफ़ा, पुल सिरात पर दुआए मुस्तफ़ा, जन्नत में पड़ोस मुस्तफ़ा और हौज़े कौसर पर जामे मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। उनकी जिंदगी का एक ही मतमा नजर था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। वो नबी उनके इश्क, उनकी सांसों के अंदर इश्क रसूल था, उनकी रूह के अंदर इश्क रसूल था, उनकी फिक्र के अंदर इश्क रसूल था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी नामूस के लिए आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इस वक्त अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे हैं कि मैं जो है वो उनको किन किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करूं। बस मैं इतना बता दूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक हमाजहत और अबकरी शख्सियत थे। आपको जिस रुख से देखें, आपने दुनिया में इश्क रसूल को आम किया है, मोहब्बत रसूल को आम किया है, नबी पाक की मोहब्बत लोगों के अंदर बेदार करके तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए कायनात आलम को आपने बेदार किया। हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर जो आपने तहरीक चलाई, पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत चलाई, उसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो आपने तहरीक चलाई वो भी तारीख़ इस्लाम का हमेशा हिस्सा रहेगा। और ये वो सारे वो आमाल हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की दराजात की बुलंदी का सबब हैं और इंशाअल्लाह उनके लिए सदका जारिया हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फिक्र मौजूद है, उनका तसव्वुर इश्क मुस्तफ़ा मौजूद है, उनका तसव्वुर मोहब्बत रसूल मौजूद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक एक रुकन को वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की फिक्र का अमीन बनाकर दुनिया के सामने गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मौत पर, मौत हो तो ऐसी यानी सख्त सर्दी में वो वहां रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देने गया हुआ था और वापस आया तो रब ने कहा तुम में तो ये पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। इस कौल में कोई शक नजर आ रहा? ये तुम्हें तो पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत पसंद। मुझे तो जो किसी को पसंद होता है उसे कहाँ रखता है? अपने ये सरद है कि नहीं? तुम्हें तो शायद तुम्हें तो पसंद नहीं आया ना, तो ये
लो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको अपने पास बुला लेता हूँ। जिसको पसंद करता है कोई, वो चाहता है या मैं इसके पास चला जाऊं या ये मेरे पास आ जाए। ज़ाहिर है खल्लाक के कायनात जो है वो हिसार में नहीं आ सकता। उसने कहा तू आ जा, तू आ जा। वो चला गया। उम्मत अभी तो नहीं रोई। मैंने कहा था अब ये उम्मत उसे याद कर करके रोया करेगी। खुदा करे फिर कोई ऐसा मर्द पैदा हो जाए जो इस उम्मत को फिर से जगा दे। अपनी अपनी मसाजिद में सोए पड़े थे, मदारिस में सोए पड़े थे, अपने अपने कामों में पूरी तरह गरकाब थे। ऐ मालदारों तुम भी याद रख लो, कल क़यामत को यूं होगा, मेरा विजदान कहता है जब रसूलुल्लाह नज़र करम करेंगे, कह देंगे खादिम सर ले आज गल कर ले मेरे किन्नू किन्नू मैं बिना हिसाब ले जा, आज गल कर ले तू मेरे नाल, मैं किन्नू किन्नू बिना हिसाब ले जावा जन्नत च। ओह यकीन करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इशारा हुआ तो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। आज हमारे लिए बड़ा क़यामत खेज दिन है कि आज वो आशिक चुप हुआ, वो बुलबुल जो हमेशा रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए नगमा संज रहता था, वो बुलबुल चुप हुआ। आह के बुलबुल के चुप होने से चमन उजड़ गया, आह के चमन की बहार जाती रही, आह के वो जाता रहा। असार क़यामत ज़ाहिर हो चुके। अब जब भी आएगी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि अपने आप को कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, कुछ भी बन जाइए, मदीने के चांद की गुलामी में रखिएगा। वही गुलामी जो है वो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत के लिए काम आएगी। हमारा सलाम है मौलाना खादिम साहब रिजवी, आपकी अज़मत, आपकी इस्तिकामत को, आपके तर्ज बयान को। लोगों को बुरा तो लगा, लेकिन बताइए जो सच्चा होता है वो यूं ही कहता है जिस तरह वो कहता था। कहिए बोलिए, जो सच्चा होता है वो यूं ही कहता है जैसे खादिम साहब रिजवी कहता था। जो सच्चा होता है उसका तर्ज अमल यही होता है ना जो खादिम साहब रिजवी का था। देख लो, आज मेरी बात नोट कर लो, खादिम साहब रिजवी गया, वो नहीं आएगा। और जिनको अपने जोर का अब तक घमंड है वो लिख ले बेटा, कुछ ही दिन, कुछ ही माह साल गुजरने की देर है, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा खादिम साहब रिजवी आज है। बस सकता कोई तो मुझे चैलेंज कर दे, मैंने गलत कहा तो चैलेंज कर दे, मुझे कहे कि तेरी ये सजा है, तेरी वो सजा है। दे सकता कोई सजा? खादिम साहब रिजवी जैसा हुआ है ये सब हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। मैं बीमार हुआ 2 साल पहले की बात है, बज़ाहिर हयात की कोई उम्मीद बाकी ना रही। मैंने ख्वाब में मौलाना खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। मेरे कमरे में तशरीफ लाए तो मैंने उनसे कहा कि हजरत दरवाज़ा तो बंद है, तो आप कैसे तशरीफ ले आए? मुझे कहने लगे कि मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा मेरी तबीयत देख लें आप, क्या सूरत हाल बन गई है। तो मुझे कहने लगे फिक्र न करें, आप ऐसे करें कि दूध में हल्दी मिलाकर पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा मैंने कभी पी नहीं दूध में हल्दी मिलाकर, मुझे ये तबन पसंद नहीं। मुझे फरमाने लगी कि हुक्म उधरों आया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मौका मिला तो करीब बैठे हुए थे, मैंने कहा फिर दूध मंगवाता हूँ, हल्दी भी मंगवा लेता हूँ। हल्दी भी मंगवाई, दूध भी मंगवाया और उन्होंने उसको उसमें मिला दिया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो गिलास पी लिया। ये नहीं, ये ज़ाहिर बात है, ख्वाब में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी, तो ठीक हो भी, मैं मर तो नहीं गया। बंदा नहीं मरता जब तक उसका अमर नहीं आएगा। अब अगर मौलाना खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वापस बुला लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आना जाना कब से लगा हुआ है। यहाँ तशरीफ लाए, वहाँ जिधर मेरा इशारा स्टेज थी उस पर, तो मेरे क्लास फेलो थे ना, मुझे फरमाने लगे कि मैं उम्र में तुझसे छोटा हूँ। मैंने कहा
خود ہی کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے میں تیری الیکشن کمپین چلاتا رہا ہوں. مجھے اس کا یاد نہیں تھا کہ مولانا ان دنوں جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے اور میں بھی وہیں پڑھتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو سے اللہ کوئی کام لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو یاد رہا نہ رہا، تحقیقات یاد رہی نہ رہیں، انہیں بخاری مسلم یاد رہی نہ رہی، حدیثیں ان کی نام تو یاد ہی ہے ساری امت کو، لیکن یہ یاد رہے گا کہ ایک مرد ایسا بھی آیا تھا جس نے اس امت کو جگانے کے لیے یوں کہا تھا لبیک